Good morning, children. So in the previous class, we have studied about the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance was put forward by Sutton and Bowry, and they said that the factor which were described by the Mendel, that is the three characters which are found in the factor, that is the factors are found in pair, factors segregate during chromosomal during gamete formation, and factor reunite on fertilization. These three characters are even found in the chromosome. Chromosomes are also found in pair. Chromosomes are also segregate during gamete formation, and chromosomes also reunite on fertilization. So they put forward their idea of chromosomal theory of inheritance, stating that whatever they are saying about the chromosomes are factors are nothing but they are chromosomes. But soon they realized that the number of factors in any individual should be in thousands, whereas the number of factors are only limited to a few. None of the organism has got very high number of chromosomes. The highest number of chromosomes which we found in Adder's fund, which has got somewhere about 1260 something chromosomes. So that means the number of chromosomes are only limited, but the number of factors are very, very high. So that means that one chromosome cannot be controlling one factor. Rather, more than one factors are located on each chromosome. So that was the idea which was given by the Sutton and Bowry. Sutton and Bowry said that the factors are located on the chromosomes, and each chromosome has got number of factors in it. Now the thing is that when number of factors are located together on one chromosome, so wherever this chromosome going, all these factors which are there will go together. So suppose this is a chromosome in which the red let us take in the old, that is Mendelian cross, and we have studied that one of the factor which is located here is for the yellow seed, and the other one is for round shape. So whenever this chromosome will be segregating and fertilizing, these factors will always be there. So whatever chromosome it is fertilizing with, all the individuals will always be having round and yellow. So the ratio in the dihybrid cross should have come what do you call 3:1 ratio. Let us see how. So this is the parent one which was having round and yellow seeds, and this was the parent two which was having wrinkled and green seeds. Okay, round and yellow both are located here, and wrinkled and green I just change the color. I make it green. ठीक है, सो इनको पेयर में ले लेते हैं, इसको भी पेयर में ले लेते हैं. So when they will segregate, इधर से एक और इधर से एक आएंगे. So this is one parent and this is another parent. So since the round is there, this is the capital R and this is capital Y. Here it is small r and here small y. So the parents will always be showing round and yellow. ठीक है, no problem. यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई. मेंडल का फर्स्ट लॉ यही कहता था. Now let us see what happens in the next generation. सेकेंड जनरेशन में वही दो क्रोमोसोम्स ले आते हैं. This is one chromosome with small r and small y. This is another chromosome with capital R and capital Y. This is second parent with capital R, capital Y and small r and small y. When the segregation take place, so क्या हुआ, यहाँ से एक आया, इधर से एक आया, जिनके अंदर क्या है, स्मॉल r एंड स्मॉल y, स्मॉल r एंड स्मॉल y, और इधर से आया एक जिसमें क्या है, कैपिटल R एंड कैपिटल Y, और इधर आ रहा है क्या, capital R and capital Y. This chromosome is having capital R, capital Y. This chromosome is having capital R, capital Y. This one is having small r, small y. This is having small y, small y. When these two come together, so what will be the condition? Capital R, capital R, capital Y, and capital Y. When this comes with this, so क्या होगा, capital R, capital Y, and small y. When this comes with this,
rather उसके साथ ले लेते हैं this. So what will be there? Capital R, small r, capital Y, and small y. And when this fertilizes with this, so what we get? Small r and small r and small y and small y. So what we get? 3 times capital R, and यहाँ पे भी राउंड है, यहाँ पे भी राउंड है, यहाँ पे भी राउंड है, तो ये राउंड हो गया. और यहाँ पे भी येलो है, यहाँ भी येलो है, और यहाँ भी येलो है, तो ये येलो हो गया. And in this case it is wrinkled, और ये ग्रीन. तो रेशियो क्या आना चाहिए? 3:1. But Mendel always got 9:3:3:1 ratio. That means either Mendel was lucky, or this is another kind of cross that should also be existing. So हम मान करके चलते हैं कि Mendel lucky था. Mendel was lucky. Had Mendel not been lucky, कहीं ना कहीं ये 3:1 रेशियो, और शायद आया भी होगा, बट मेंडल ने बताया नहीं होगा शायद. Anyway, let us consider a cross which was conducted by T.H. Morgan. We already studied about T.H. Morgan's this thing. That T.H. Morgan has chosen that Drosophila melanogaster for his experiment, and in Drosophila melanogaster he got 3.3 allelic character. Some had red eye, most of them had red eye, some had white eye. Most of them had barred body which have bars. Here you can see Drosophila. You can see these lines. These lines you can see. So these lines which can be seen in the body here, these are bars. Okay. Whereas the other flies, a few flies were there which had yellow body, no bars. And most of them are having prominent wings. Here you can see prominent wings, whereas a few had the wings which are very, very rudimentary. Okay, could not be able to make them fly. So there were 3 pairs of character which Mendel found, and now Morgan found, and now Morgan started conducting his experiment. So it's Morgan's first experiment. Remember, I am explaining here only the cross A. Okay. So just now we are talking only about the cross A. Now in the cross A, what he has taken? He has taken 2 flies. This is the female. You can see here female, and this is male. So the female is of what type? Yellow body and white eye. That means these are the recessive character which are less common. Okay? These are the recessive character which are less common. Most of the organisms have red eye and barred body. So they are the wild type. Wild type are those which are the very common. That is the dominant. क्या है dominant character? Red eye and barred body. और इनमें क्या मिल रहा है? White eye and yellow body. Now a cross has been conducted. So what Mendel got in F1 generation, whatever type of cross you conduct in F1 generation, out of the 2 character, only 1 used to appear. So out of the red eye and white eye, only red eye were expected because they were the dominant character. And from the barred body and yellow body, only the barred body expected. These were the expectation. But what he got, what T.H. Morgan got, very strange result. The females were having wild characters, that is the red eye and the barred body, which were found in the male parent. The daughters, all the daughters were which born there having a father's character, and all the sons born had mother's character. ऐसा भी होता है क्या कभी? So this was a deviation. Mendel ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. Mendel ने कहा कि irrespective sex, the character of the 2 characters, dominant character will pass in the F1 generation. यहाँ तो कुछ उल्टा ही मिल रहा है. अब T.H. Morgan बैठ गए अपना दिमाग लगाने. उन्होंने अपना पूरा कोशिश कर लिया. He tried his level best to get the answer, but he could not. He could not get the answer. ठीक है?
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सोचते रहोगे, उन्होंने दिमाग लगा लिया। तब उसका जो चेला था स्टडवेंट ने कहा भाई अपन ऐसा क्यों नहीं करते हैं, एक क्रोमोसोम को ऐसा मान लेते कि उसमें कोई फैक्टर ही नहीं है। मेल के अंदर ऐसा मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम में कोई फैक्टर नहीं है। सो दिस इज द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इज शॉर्ट एंड इट डजंट हैव दीज फैक्टर्स लोकेटेड इन इट। ठीक है, वाई क्रोमोसोम इज शॉर्ट एंड इट डजंट हैव एनी फैक्टर लोकेटेड इन इट। सो इट विल हैव ओनली वन क्रोमोसोम ऑन विच द, अच्छा ये प्लस मार्क से जो दिखा रहे थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। So W is actually for white eye and this white plus that is red eye. So red eye के लिए क्या करेक्टर दिखा है? Red eye is denoted by W plus and barred body is denoted by Y plus. Okay, this was T.H. Morgan। देखो हर आदमी का अपना अपना तरीका है ना, अपना अपना तरीका है। कोई प्लास्टिक के टिफिन में खाना लाता है तो कोई कहता है मैं प्लास्टिक में नहीं ले जाऊँ, मैं तो स्टील वाले में ले जाऊँ। कोई बोला स्टील में ले जाएगा, मैं इंसुलेटेड में लाऊंगा। कुछ और बोलता है कि मैं इंसुलेटेड में ले जा रहा तुम तो मैं हीटर वाले में लेके आऊँ। सो अपना अपना तरीका। तो मेंडल सेड कि वी विल एक्सप्रेस द डोमिनेंट कैरेक्टर विथ कैपिटल लेटर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, इन्होंने कहा भैया हम तो रिसेसिव के फर्स्ट लेटर से लिखेंगे और डोमिनेंट को उसके प्लस लगा के बताएंगे। बताओ भैया, ठीक है, टीएच मॉर्गन ने जो कहा वो हम मान रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपनी जेब से तो रख नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉपीराइट ऑफ हिम। उसने जो करा वो हमको फॉलो करना है। ठीक है, वी आर डन, वी आर डूइंग दैट। सो हमने क्या देखा, that the dominant characters are found only on one chromosome. The other chromosome doesn't have this respective factor, whereas the recessive are homozygous. So जो यहाँ पे मिल रहा है वही यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, so they will segregate and one of it will go here and one of it will go here. And इधर से क्या, this is going here and यहाँ से ये इधर है। जिसमें ये वाला गया वो तो मेल हो जाएंगे, so ये मेल हो गया। And the male is receiving only one chromosome from the mother which is having factor and the other chromosome from father which doesn't have factor. So definitely when father's Y chromosome doesn't have any factor, the mother's factor will only be expressed. So mother's factors कौन से, recessive, so recessive factors expressed there and we got the recessive character. Whereas in this the dominant characters chromosomes came from the father and the recessive characters chromosome came from the mother, and among them whichever is the dominant they will express, so they become Y type. हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट 2-3-4 डेज जितना हमने स्ट्रगल करना था स्ट्रगल कर लिया। अब चेले जी ने आंसर बताया कि भैया हम ऐसा करेंगे तो हो जाए। ठीक है, तो कई बार गुरुजी गुड़ी रह जाते हैं और चेले जी शक्कर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस 2 करना है। क्रॉस 2 किसके बीच में करना है, बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या आए थे हमको, हमारे पास में हमने कहा कि F1 जनरेशन को पीछे ले लेते हैं पहले। ये हमारे पास F1 जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन मदर, दैट इज, अब इसको मदर बना देंगे और इसको फादर बना देंगे फॉर द F2 जनरेशन। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इधर से ये वाला फैक्टर इधर आना चाहिए। चलो इसको अलग करते हैं। इधर से ये वाला फैक्टर इसके पास गया और ये वाला फैक्टर इसके पास गया। इधर से ये वाला फैक्टर उसके पास गया, सॉरी यहाँ पे पहले F1 में उन्होंने सारे बेटों को बताया है, मेल को। ठीक है, तो यहाँ पे गोंदे एंड ये वाई क्रोमोसोम इधर आया और ये वाई क्रोमोसोम इधर आया। ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग, एक्सपेक्टेड भी क्या था, एक्सपेक्टेड था कि पेरेंटल टाइप कैसे होने चाहिए, वही 3:1 रेशियो आना चाहिए। 3 टाइम कैसे आने चाहिए थे, द रेड आई एंड बार्ड बॉडी, एंड 1 टाइम कैसे आने चाहिए, द व्हाइट आई एंड yellow body. But what he is getting, to his surprise, what is getting, 98% is parental type.
पेरेंटल टाइप कौन से 3:1 रेशो वाले। एंड 1.3 टाइम जो है बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन आ गए। कॉम्बिनेशन नए जैसे है, देखिए एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन क्या था, रेड आइड एंड हार्ड बॉडी 3 टाइम आना चाहिए था, और 1 टाइम कैसा आना चाहिए था, व्हाइट आई and yellow body. But if we talk about the dihybrid cross which was observed by the Mendel, where the factors were located on the different chromosome, उसके हिसाब से क्या आया था, that is red के साथ में yellow भी आ गए, yellow body, and white के साथ में barred भी आ गए, और रेशो कैसा आना चाहिए था, 9 टाइम ये आता, 3 टाइम ये आता, 3 टाइम ये आता, और 1 टाइम ये नहीं मिल रहे इसको, ये रेशो नहीं मिल रहा है, नीदर दिस रेशो इज देयर। ये रेशो कब होते हैं, जब पेरेंटल क्रोमोसोम टाइप रहते हैं, फैक्टर कॉम्बिनेशन फॉर ओनली ऑफ पेरेंटल, ये नहीं आ रहा। अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये रेशो होना चाहिए था, ये भी नहीं आ रहा। वी आर गेटिंग दीज टू वेराइटीज, वी आर गेटिंग दीज टू वेराइटीज only 1.3 टाइम, 1.3 टाइम, और ये वेराइटी मिला के हमको कितना मिल रहा है, 98.7 टाइम। सो दिस अगेन लेड अ क्वेश्चन, आगे वापस से दूसरी एक प्रॉब्लम तो हम निपट गए जिसमें हमने क्या वाई क्रोमोसोम लिया, उससे हमारा सॉल्यूशन हो गया। दिस इज अनदर प्रॉब्लम वेयर रिकॉम्बिनेशन वाज नॉट एक्सपेक्टेड, फिर भी रिकॉम्बिनेशन आ रहा है। कैसे आया भाई, रिकॉम्बिनेशन कहाँ से आया, वेयर दिस रिकॉम्बिनेशन हैज कम फ्रॉम। सो दिस वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन व्हिच मेंडल कुड नॉट, मेंडल क्या, टी.एच. मॉर्गन कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, एंड मेंडलियन लॉ में तो ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। सो दिस लेड टू अनदर प्रॉब्लम एंड लेट अस टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम, इसका क्या सॉल्यूशन है। ओके, F2 जनरेशन के अंदर ही ये तो अपन ने कैसे लिए, ये तो सारे मेल लिए, फीमेल लेते तो क्या आते हैं, फीमेल में क्या आ रहे होते हैं, दैट इज 1 कैरेक्टर फ्रॉम ईयर, 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईयर, एंड दैट इज दिस वन, इसमें भी आया, और दिस वन इसमें भी आया, और इधर से क्या आते हैं, यही आते, स्मॉल w एंड स्मॉल y, ठीक है। तो क्योंकि ये होमोजाइगस हो गया तो ये तो होता है येलो एंड व्हाइट, और इसमें क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये हो गया वाइल्ड टाइप। सो बोथ द मेल एंड द फीमेल का अगर हम रेशियो लेंगे, पहले तो मेल मेल का देख लेते हैं, तो व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट इज 98.7% मेल एंड 98.7% फीमेल जो हैं वो पेरेंटल टाइप के होंगे, और उनमें 50% जो है वो वाइल्ड टाइप हो गए, और 50% जो है वो येलो एंड व्हाइट टाइप के हो गए। तो ये तो बहुत ही अजीब रिजल्ट आया, मेंडल ने कभी ऐसा बताया ही नहीं था, मॉर्गन ने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। और तो और 1.3% recombination is getting 1.3% recombination. Now the question is, when the factors are located on the same chromosome and these two factors, अगर मैं इसको दूसरे कलर में ले लेता हूँ, say for example this, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये वाला ब्लू वाला जहां जहां जाएगा उसके ऊपर मिलने वाला, अगर मैं इसको मेंडल के, सॉरी यार, सॉरी अनडू करते हैं, और पहला वाला करते हैं, ओके। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये कैपिटल W एंड कैपिटल Y है, ओके। सो कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। सो ये कैपिटल W और ये कैपिटल Y, और ये क्या है, स्मॉल w एंड ये स्मॉल y, ओके। सो अभी हम कभी भी क्रॉस करेंगे ना, तो ये दोनों कैरेक्टर तो साथ चलने चाहिए थे, और ये दोनों कैरेक्टर साथ चलने चाहिए थे, और किसी भी हालत में इसका ये इसके साथ कैसे जा सकता है। मैंने आपको अगर याद हो मेट्रो ट्रेन का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास के अंदर, या मान लीजिए एक बस है, इस बस के अंदर W+ और Y+ चल रहे हैं, और ये दूसरी बस है
जिसके अंदर W स्मॉल w एंड स्मॉल y चल रहा है। जब तक ये बस रुकेगी नहीं, दोनों का डोर खुलेगा नहीं, इसमें से कोई एक पैसेंजर उतर के वहां कैसे जाएगा और वो पैसेंजर इधर कैसे आएगा, जब तक यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि इसका एक सेगमेंट इसके सेगमेंट से एक्सचेंज हो जाए, तब तक तो ये रिकॉम्बिनेशन बनना ही नहीं चाहिए था, बट यहाँ बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम वे वेयर द फैक्टर्स आर एक्सचेंजिंग, देयर इज सम वे वेयर द फैक्टर्स आर एक्सचेंज। टीएच मॉर्गन को समझ नहीं आया? टीएच मॉर्गन ने कहा यार ये तो मेरे समझ नहीं आ रहा, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। देन अगेन इसका चेला स्टडवेंट, उनने कहा भाई देखो ये ऐसा नहीं समझ आएगा, this you cannot understand by this simple funda which was given by the Mendel. But to explain this or to understand this, we have to consider another physical property that is called crossing over. Crossing over. What does crossing over say? अगर आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़े हैं तो मियोसिस के अंदर हमने पढ़ा है कि ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ द मियोसिस, दैट इज द प्रोफेज 1, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोफेज 1 the homologous non-sister chromatid exchange their segment randomly. homologous non-sister chromatid, ये दोनों non-sister chromatid है और इनके बीच में क्या है, कहीं ना कहीं सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में सेगमेंट एक्सचेंज नहीं हो सकते, वाई के अंदर है ही नहीं। So exchange can only take place between the two chromosomes which are found in the female, the two X. One is come from the father and one is come from the mother. उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो देखिए कहाँ हो रहा है एक्सचेंज, यू कैन मेक आउट, सी कलर्स आर गिवन, द यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज जो जो फीमेल पेरेंट है उसका डोमिनेंट क्रोमोसोम यहाँ दिया है और दिस वाई इज ऑफ मेल, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, इसके अंदर क्या देख रहे हैं, दिस स्मॉल वाई इज एक्सचेंज विद द कैपिटल वाई, small y is exchanged with capital Y. In this case, you can see. ये वाला केस जो है small y small w, small y small w, इधर से आया small y small w, है ना, और इधर गया small y small w। अभी हो क्या रहा है, दूसरे केस के अंदर क्या देख रहे हैं अपन, ये वाला सेगमेंट इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पे। सो हम क्या देख रहे हैं, what we can see here, what we'll see that capital Y plus small w, यहाँ पे small y and capital W, तो यहाँ पे देख सकते हैं small y capital W, capital Y small w, so these are the recombinations, these are the recombinations। color is also changed, यहाँ इससे half blue and half yellow and half blue, ठीक है। जब इसके साथ में एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या होगा, इतना येलो इस ब्लू के साथ जुड़ जाएगा, इतना ब्लू इस येलो के साथ जुड़ जाएगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं इतना येलो इस ब्लू के साथ जुड़ गया, इतना ब्लू इस येलो के साथ जुड़ गया, तो कॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस, सेम इज हियर, इतना ब्लू इस येलो के साथ, इतना येलो इतनी ब्लू के साथ। सो दीज आर एक्सचेंज। नाउ एक्सचेंज कितना होगा, दैट अगेन इज एक्सप्लेन्ड, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आपको जनरली कोई समझाता नहीं है, ठीक है। यू हैव टू पे अटेंशन वेरी मच, अनलेस यू पे अटेंशन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपने अगर सोचा कि भाई मैं कहीं से भी पढ़ लूंगा समझ लूंगा अपने आप से सेल्फ स्टडी से, तो नहीं आने वाला, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। You have to pay attention on this diagram, ठीक है, this is important। So this was the cross one में क्या चीजें अपन ने खास देखी उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। This is the female with the recessive character, dominant। Whenever crossed in F1 generation, expected all the individuals should be with the dominant character. But what we got, that all the females were with the dominant character and all the males with the recessive character. Now, how this crisscross has taken place? That is how father's character gone into daughters and mother's character gone into son. So this can only be explained if we have to take that Y chromosome has no factors on it. The Y chromosome doesn't have any factors on it.
और जब हम इसको यहाँ पे समझेंगे इस तरह से तो क्या हो गया, द मदर है कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, मदर है कॉन्ट्रीब्यूटेड small y small w इधर and small y small w इधर, but the father has contributed capital Y capital W here and the Y the chromosome here. तो Y क्रोमोसोम के अंदर कोई होता ही नहीं है फैक्टर्स, तो इसलिए ये तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नहीं. सो वट एवर फैक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम देयर दे विल बी एक्सप्रेस, सो दे आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स, सो द रिसेसिव कैरेक्टर कम हियर. Whereas here one of the recessive characters come from the mother and the dominant character came from the father, that is why the dominant characters are expressed by the daughters. ठीक है, तो दिस इज आई थिंक क्लियर. अब अपन पढ़ते हैं दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2. नाउ वी आर दैट इज द पेरेंट्स आर चेंज. पहली जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग थे वो अब पेरेंट्स बन गए. तो अब उनके लिए देखते हैं क्या हुआ. अभी ये पेरेंट्स बन गए. अभी इन पेरेंट्स के अंदर क्या है, द वाइल्ड टाइप जो है उसके अंदर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, वन क्रोमोसोम इज रिसेसिव एंड अदर क्रोमोसोम इज डोमिनेंट. And in the male, in case of male, what we are saying that is the one chromosome is carrying recessive factors and the Y doesn't have any factor. So अभी इनको क्रॉस कराएंगे, है ना, और हमको यहाँ पे चारों बेटे पैदा करने हैं, दैट इज मेल करने हैं. तो मेल पैदा करने के लिए क्या करना है अपन को, ये Y को लेना है. तो हमने ये Y को लेकर के और 4 जगह पे बांट दिया. यहाँ पे भी Y डाल दिया, यहाँ पे भी Y डाल दिया, यहाँ पे भी Y डाल दिया और यहाँ पे भी Y डाल दिया. और इधर से क्या लाना है, 50% के अंदर ये वाला क्रोमोसोम लाना है, 50% में नीचे वाला लाना है. तो 50% में ये ले आए हैं अपन, क्या लाएंगे देखिए, ठीक है. सेम इज हियर डाउन. दूसरे वाले केस के अंदर F2 जनरेशन के अंदर ये F2 जनरेशन के ये पैदा हुए हैं, मेल पैदा हुआ और इधर फीमेल पैदा हुआ. Now what we are seeing here is a very strange thing we can see, that is if both the chromosomes are located on the same chromosome, they should not separate at all, they should always move together. जैसे मैंने आपको बताया कि एक बाइक पे 2 बच्चे जा रहे हैं, एक बाइक पे 2 बच्चे जा रहे हैं, दूसरी बाइक पे 2 बच्चे जा रहे हैं, and both of these bikes are going in the same direction. Until and unless the bike stop, how this passenger can jump into this and that, नॉर्मल है. कोई स्टंटबाज हो तो बात अलग है, तो नहीं हो सकते ना, पैसेंजर कैसे चेंज हो जाए. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इस केस के अंदर है दैट these two factors are actually passengers and the chromosome is actually a vehicle. So from the vehicle how can they jump, ऐसा हो नहीं सकता. तो हम ये मान के चल रहे थे कि रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 9:3:3:1 डायब्रेड क्रॉस के अंदर. ये नहीं आया. Then the other possibility क्या था, 3:1. ये भी नहीं आया. क्या आया, that mostly it is most of the cases are like this, but some cases of recombination is there. So ये जो 3 और 3 दिख रहे हैं वो 3 और 3 नहीं दिखेंगे हमारे को. यहाँ पे 3 और 3 की जगह ये हो सकते हैं शायद 0.5 ऐसे हो जाएंगे. ठीक है, से फॉर एग्जांपल 0.5 ये आया, 0.5 ये आया और ये इधर तो 1 आ गया. अब बचे जितने भी हैं कितने, 16 में से 2 यहाँ पर हो गए, अब बचे कितने, 18 में 16 में से तो 14 ये हो गए. ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा होगा. So now the question is why only this much of recombination? Why recombination percentage is only 1.3, not 3:3 के हिसाब से 25%. होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन ये कहाँ पर हो रहा है आपको समझ आया. रिकॉम्बिनेशन होता है कहाँ पे, देखिए अपन ने ये बनाया कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. हम क्या कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन, भाई देखिए ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल R कैपिटल Y साथ जाते हैं और स्मॉल r स्मॉल y साथ जाते हैं. तो 50% ये हो गया एंड 50% ये हो गया. ये तो तब है व्हेन देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन. पॉसिबिलिटी 1. ठीक है, पॉसिबिलिटी 2 क्या कह रहा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. क्या कह रहा है, कैपिटल R कैपिटल Y साथ जाएंगे 25%, कैपिटल R स्मॉल y साथ जाएंगे 25%, स्मॉल r कैपिटल Y जाएंगे साथ 25% एंड 25% रहेंगे जिसमें स्मॉल r स्मॉल y है. तो ये 25% है, ये 25% है, ये 25% है और ये 25% है. और इसमें ये रिकॉम्बिनेशन है तो 25-25 दैट इज 50% हो जाएंगे. और ये दोनों पेरेंटल टाइप है वो भी 25 and 25 that is 50% हो जाएंगे. So recombination should be 50% and 50% should be parental type.
यहाँ क्या हो रहा है, 98.7% जो है वो पेरेंटल है, ओनली 1.3% इज रिकॉम्बिनेशन। ये 1.3% का फंडा क्या है? T.H. Morgan is tried his level best to answer this. He could not. T.H. Morgan could not give the answer of this problem. तब उसका चेला था स्टडवेंट। स्टडवेंट ने कहा भाई इसको तब हमको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं आएगा हमको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से है। उन्होंने कहा भाई कि देखिए कि ड्यूरिंग मियोसिस द फैक्टर्स ऑफ दैट इज द होमोलोगस क्रोमोसोम जो रहते हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं यहाँ पे, ये एक क्रोमोसोम, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड, और दूसरे कलर ले लेते कुछ, ये से फॉर एग्जांपल मदर से आया होगा क्रोमोसोम, और वो ग्रीन वाला शायद फादर से आया होगा। So these are the homologous chromosomes. So if I say capital R is located here, capital R, तो यहाँ पे क्या होगा, शायद स्मॉल r होगा, यहाँ शायद स्मॉल r होगा, और यहाँ कैपिटल Y एंड स्मॉल y, यहाँ पे ले लेते हैं स्मॉल y, और इधर ले लेते हैं कैपिटल R। कौन सा कलर से लिया था, ऑरेंज, कैपिटल R। सो हम मान के क्या, सॉरी कैपिटल Y, गलत हो गया। हम मान के क्या चल रहे हैं कि कैपिटल R और कैपिटल Y साथ साथ जाने चाहिए, ये क्रोमोसोम जब जब साथ जाएंगे तब तक, और ये क्रोमोसोम जब तक साथ जाएंगे तब तक स्मॉल r एंड स्मॉल y साथ जाने चाहिए। लेकिन देयर इज एन इवेंट दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर इन द meiosis 1, प्रोफेज 1 ऑफ द meiosis। तो वहां क्या करते हैं, द होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ओवरलैप्स ऑन वन अनदर, इस तरीके से। अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अभी ये क्लास 11 का पोर्शन है, ठीक है। So they may exchange their segments with one another randomly at certain point. तो इसका कैपिटल R, ग्रीन के ऊपर कैपिटल R था, वो इसके साथ में, और इसका स्मॉल r इसके साथ में एक्सचेंज हो। Now how much will be the possibility of exchange between the two chromosomes, the two factors which are located in the same chromosome? That will be depending on that how far are they located. अभी देखिए ना, ये आपको दिख रहा है, इसके ऊपर रोरिटो लिख रहा है, रोरिटो ना। रोरिटो अगर लिखना है अपन को, तो उनको उनके दोनों मतलब अगर मान लीजिए आई वांट टू कट दिस पेन बिटवीन द R एंड O, मेरी आंख को मैं ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया, किसी ने मेरी आंख पे कपड़ा बांध दिया। अब मेरे से कहा है कि मतलब आपके हाथ में तलवार दे रहे हैं एंड यू हैव टू कट बिटवीन द R एंड O, अगर आप कर लेंगे तो आपको इतने लाख रुपए का नाम। सो द पॉसिबिलिटी विल बी वेरी रेयर। बट अगर मैं कहता हूं कि एक ये जेल यहाँ पे लिखा है और दूसरा इस एंड पे है कुछ चीज, तो यहाँ और यहाँ के बीच में आपको कहीं पे भी काटना है और आपके आंख पे पट्टी बांध दे, तो दैट विल बी मोर पॉसिबल। इफ द फैक्टर्स आर लोकेटेड फार, द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर विल बी मोर। If the factors are located on the two ends of a chromosome, the chances of their separation by crossing over will be the highest. And the two factors which are located very close to one another on a chromosome, the chances of their separation by crossing over will be the least. So if we are saying that the recombination percentage is only 1.3%, that means their factors are located close to one another. देख लीजिए ना यहाँ पे कैसे बना रखा है, ऐसे ही बना रखा है। The two factors are located close to one another, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज 37%, तो उनको कहाँ बताया, एक को यहाँ बिठाया और एक को यहाँ बिठाया, टोटल लेंथ को 50% माना है। तो 50% में वो जितनी दूर होंगे उतना ही इनको मतलब उनका रिकॉम्बिनेशन परसेंट बढ़ जाएगा, जितना पास होंगे उतना ही रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कम हो जाएगा। So recombination percentage is in fact is also an indicator that how far are they located on one chromosome. So you looking this or using this, we can even map a chromosome. तो इसको कहते हैं chromosomal mapping. ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्रॉस, पहले वाला मैंने आपसे कहा था, अभी हम केवल अपना ध्यान किस पर रखेंगे, क्रॉस 1 पे। क्रॉस बी को अब देखते हैं।
Now cross B is a cross which was conducted between the two characters, white eye and miniature wing. Whereas in this will the eye will be red, and wings कैसे होंगे इसके? Normal, full wings. इसके miniature wing है, छोटे से दिखाओ. Dominant. तो अभी इसमें क्या है, रिसेसिव वाले करेक्टर्स यहाँ पर है और डोमिनेंट वाले करेक्टर यहाँ पर है और उनके बीच में क्रॉस करा है. एंड वही देखा उसने कि जो मदर के करेक्टर सन में चले गए, फादर के करेक्टर डॉटर में चले गए. सो फादर वाज हैविंग डोमिनेंट करेक्टर, दैट इज द रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स, दैट हैव कम हियर इन द डॉटर्स, एंड व्हाइट आई विथ मिनिएचर विंग दैट ऑल कम इनटू सन. सो वो तो हमने समझा दिया कि भैया क्योंकि y के ऊपर देयर इज नो रेस्पेक्टिव फैक्टर लोकेटेड, सो दे आर ऑलवेज प्योर. सो होमो जाएगा सो, हिट्रो जाएगा सो, जो भी करेक्टर वहां आ जाएगा, क्योंकि y के पास कुछ है ही नहीं तो जो y x के पास है उससे ही चल जाएगी. ठीक है. घर में जब पापा होते हैं ना तो बच्चे शोर नहीं बचाते, लेकिन जब पापा और मम्मी और भाई बहन कोई भी नहीं है तो बच्चों का ये राज होता है. देन वट एवर दे वॉन्ट दे कैन डू. फिर वो चिप्स भी खाएंगे, नमकीन भी खाएंगे, शोर भी मचाएंगे, टीवी भी चलाएंगे, नहाएंगे भी, वॉशरूम बाथरूम का पानी सारा ड्राइंग रूम तक ले आएंगे, इतना मौज करेंगे वो. सो यहाँ पे ये मौज वाली सिचुएशन है. व्हाई? बिकॉज द फादर इज नॉट एबल टू शो एनीथिंग. वो तो पैरालाइज्ड है, मतलब उसमें कोई सेंसेस ही नहीं है. सो इनकी एब्सेंस में, इनके होने नहीं होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. So if dominant character are there, they will be able to show. If the recessive character are there, they will be able to show. Whereas in this case क्या recessive है लेकिन dominant अपने आप को show करेगा, dominant उनको दबा देगा. ठीक उस तरीके से जैसे दादाजी घर में होते हैं या पापा जी घर में होते हैं तो बच्चे की कितनी भी इच्छाएं हैं लेकिन वो अपनी इच्छाएं मार करके चुपचाप पड़ा रहता है. टीवी देखने की बहुत इच्छा होगी तब भी नहीं देख पाएगा, उसको मैगी खाने की बहुत इच्छा होगी तब भी वो नहीं खा पाएगा. पापा बोलेंगे ये क्या है, खाना खाओ चुपचाप, लौकी की सब्जी बनी है खाओ. ठीक है. सो देयर इज अ डोमिनेंस व्हिच विल बी फोर्सिंग यू. हियर डोमिनेंट कैरेक्टर इज देयर तो डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा. हियर रिसेसिव कैरेक्टर इज देयर, तो सिंस देयर इज नो डोमिनेंट कैरेक्टर ऑन द वाई क्रोमोसोम सो इट विल बी एक्सप्रेस्ड. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ F2 जनरेशन पे चलते हैं. F2 जनरेशन में हमने क्या देखा, रिकॉम्बिनेशन तो हो रहा है, पहले यहाँ पे भी हो रहा था. रिकॉम्बिनेशन वाज टेकिंग प्लेस हियर आल्सो. होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ. और यहाँ कितना हुआ, 1.3% ओनली. हियर रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज इज हाउ मच, 37.2%. व्हाई? Because these two chromosomes are located little away from one another. So when the crossing over was taking, the probability of crossing over to separate these two factors are more because they were located far. तो इसकी बेस पे T.H. Morgan has put forward a new rule that is called, पहले तो हम लिंकेज पढ़ ही चुके थे लास्ट क्लास में. लिंकेज किसको कहेंगे, दैट इज व्हेन द टू और मोर फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. Linkage. Linkage, that is when two or more factors are located on the same chromosome. ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, लिंकेज था. Now linkage can be of two types. Linkage can be of two types. बस सिर्फ इसलिए आगे बढ़ा है ताकि मेरे को थोड़ी जगह मिल जाए. So linkage can be of two types. One is loosely linked and tightly linked. Loosely linked क्या होते हैं, when the factors are located very far, when recombination percentage is more, as the factors located at far distance. ठीक है. लूज टाइटल लिंक क्या होते हैं, when the two factors closely
located, their chances by separation, the chances of separation कर देते हैं, their chances by separation, chances of separation. The chances of separation by crossing over is very low. ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए. So that's all for today, and if you got any doubt you can always ask me. Thank you, sir. Good day.